Okay. Hello, everybody. And I want to thank you all who have come here to listen to the first talk on the topic health and wellness at the Aware Raho platform. I'm sure everybody will be having many questions regarding to what is this Aware Raho, what we are going to do here, or how it is going to help the people. So, for the same, you can go and see our introduction video, introduction of Aware Raho. Now, first thing which I want to share here is I want to tell you about what is this Expert Talks. Now, Expert Talks is a platform wherein we will be inviting the domain experts to talk about the relevant topics which actually matters to everyone's life, right? So these experts are the people who have the authority to talk about on that topic. They will be sharing their insights, their knowledge, their experiences, which is gonna help us in our journey towards that particular segment or that field. So we will be able to have few answers like what, why, how, when with this expert talks. So listen to them. If you like it, if you feel they are going to help you, please share it with other people so that they can also benefit out of it. So now, firstly, I want to welcome and thank Mrs. Shilpa Mittal, who is a nutritionist and diet consultant, and she has been working in this field from last 20 years, helping people reshaping their lives for practical and with the practical and easy use of follow nutritional health plans. So welcome Shilpa ji on the expert talk, on the very first expert talk on health and wellness. So, welcome to the platform. Thank you so much and for inviting me here. And I should tell you that it's a very good initiative that you have started with. So a lot of people will benefit with the right kind of knowledge, I would say, because knowledge is now overloaded in the media, but getting access to the right kind is very important. So a Yes, very good initiative. thank you very much for your kind words. And yes, as you rightly said, knowledge is everywhere, but somehow we are not able to use it properly, or Yeah. it is not available in a format which is easily understandable by the masses, right? True, So true. that was the reason we have started with this initiative, wherein we will be inviting you, the experts like you, who can talk about the subject and they can make people understand in the easy words, in the easy way, how and what has to be done, right? So Right. before starting it, I want to ask a very important question about the topic, that is role of nutrition for boosting immunity. Right, everybody is talking about immunity these days, right? And because of the crisis, current crisis, pandemic, everybody is thinking about the immunity. What, according to you, is the immunity? Can you explain it in very simple words for the people? Yes, I'll do that. As you rightly said, everywhere, I mean, whatever you log into or whatever you open, the first thing comes is immunity and foods to increase your immunity. So, Right, what is immunity basically? Each one of us has it inbuilt in our body, and how we take care of it is how, I mean, is what is up to us. So, immunity is nothing but, in very simple terms, is प्रोटेक्शन आपको सुरक्षित रखना सो इम्यून okay, सेल्स इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में हमेशा से है बट right, हाउ गुड आर यू कीपिंग इट मीन्स उनका जोश कितना हाई है मैं एक तरीके से बोलूंगी कि इट्स अ काइंड ऑफ वॉर जो अभी भी चल रहा है the right, only thing is inside our body if you look at it so immune system is nothing but एक proper army है जिसके पास soldiers commanders सब है and how are they working how is their जोश depends entirely on us कि हम क्या खा रहे हैं उनको कितना अच्छा feed कर रहे हैं so in right, simple words, immunity is nothing but protecting your body against whatever outside. Like हम ऐसे भी रोड पे चलते हैं तो इतना सारा pollution, इतनी सारी sand, dust होती है, okay, लेकिन हम घर आके बीमार नहीं पड़ जाते रोज.
So, but that's Right. because our immune system is working. So, in Okay. simple terms, it is like the protecting mechanism which we all have inside our bodies. Okay, so what we are saying is कि immunity is a protective mechanism which is Right. inside our body, right? Yes. लेकिन Yes. ये हमारी बॉडी में काम कैसे करता है, मतलब how this Okay. immune system works for our body. ओके, सो देखिए, जैसे मैंने पहले के एग्जांपल बोला था कि अगर आप बाहर जाओ और हम्म, आपको कुछ नहीं हो रहा है, मींस इम्यून सिस्टम आपका वर्क कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों के केस में लीजिए, जब छोटे okay. बच्चे नर्सरी या इसमें जाते हैं, सब माओं को शिकायत होती है, अरे सर्दी खांसी हो गई है बहुत क्लास में, तो मेरे बच्चे को भी हो जाएगी। कई हम्म, बार होती है, कई बार नहीं होती है। तो okay. अब ये इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है, या हमारे साथ भी ऑफिस में ऐसे लगता है बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, वायरल है, मुझे भी वायरल फीवर नहीं हो जाए। सो हम्म, क्या होता है हमारे इम्यून सिस्टम में, जैसे मैंने कहा बहुत सारे सेल्स और ये होते हैं, हम्म, सेल्स जिसको हम कमांडोज या सोल्जर्स बोल सकते हैं। तो जैसे yes. बीटा सेल्स करके एक है जो हमारे मतलब बॉडी में इम्यूनोग्लोब्युलिन्स बनाता है, जो Okay. हमें प्रोटेक्ट करते हैं बीमार होने से। ऐसे ही Okay. दूसरे सेट है जिनको टी सेल्स बोलते हैं, जो ब्लड में होते हैं। फिर Okay. फैगोसाइट्स करके एक है जो ये फॉरेन बॉडीज को बेसिकली खा लेते हैं। तो सबका अलग अलग रोल है, सब अलग अलग जगह पे है, कुछ स्किन में है, कुछ ब्लड में है, कुछ आपके गट में है। तो ऐसे अलग अलग जगह पे, कोई व्हाइट ब्लड सेल्स में है। तो वो पूरे दिन काम करते रहते हैं, और जहां भी उनको लगता है, जैसे हमें कई बार एक छींक आ जाती है, बहुत डस्ट होती है, तो वो Right. भी एक इम्यून सिस्टम का काम करने का तरीका है। तो इस तरीके Okay. से इम्यून सिस्टम वेरियस लेवल्स पे काम करके हमारी बॉडी को बचाती है आउटसाइड इन्फेक्शन या माइक्रोब से। Okay. ओके, सो व्हाट आई गॉट इट इज कि ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है बॉडी में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से काम करता है, राइट? स्किन राइट, का अलग इम्यून, सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर लेवल पे अलग अलग सिस्टम्स बनाए हैं भगवान ने। तो जब ओके, लगता है कि चलो ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है, तो टी सेल्स रिलीज होंगे। ऐसे अलग अलग सेल्स अलग अलग जगह पे रिलीज होते हैं। ओके। तो अभी जैसे ये कोविड-19 या ये चल रहा है, द करंट क्राइसिस इज देयर, पैंडेमिक, तो राइट। ऐसे टाइम्स पे या ऐसी सिचुएशंस में ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी पे कैसे काम करती है? हाउ दिस इम्यूनिटी हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दीज सिचुएशंस? राइट, अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो जैसे मैं मेरे क्लाइंट्स को भी देखती हूँ, जितना नॉलेज उनको मिलता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ये काढ़ा पीना है, ये खाना है, सब कुछ फॉलो करते हैं। बट मतलब मुझे ये बोल के डीमोटिवेट भी नहीं करना है, बट यस, अगर आप हेल्दी खा रहे हैं तो इम्यूनिटी इज नॉट समथिंग जो आज आपने ये खाया और कल आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई। बट धीरे धीरे राइट, वो ही लगातार कंसिस्टेंटली करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ओके, जैसे ये सिचुएशन में आप पूछ रहे हैं कोविड में, तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, अगर आप पहले से हेल्दी हैं, बहुत कम प्रोसेस जंक फूड खाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मैम मैं कभी बीमार नहीं पड़ता, सर्दी खांसी बुखार मुझे कितने सालों से हुआ नहीं है, मीन्स आपकी सिस्टम काफी अच्छे से फंक्शनिंग कर रही है। तो आप ओके, वो सेक्टर में बिलोंग करते हो जो एटलीस्ट कुछ हद तक थोड़े हेल्दी है। तो अगर आपको ये होता भी है तो शायद आपको पता नहीं चलेगा, माइल्ड सिम्टम्स में ठीक हो जाएंगे, तो इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। एंड जो दूसरा सेट है, जैसे जिन्हें बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज, बीपी, तो उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो उन्हें अगर हुआ तो शायद उनको कुछ फर्क पड़ सकता है या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इम्यूनिटी कोविड में इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब 2 महीने हो गए हैं, मैं बोलूंगी अगर जिसने ये 2 महीने भी बहुत अच्छे से खाया है, तो यस, आपने अपनी इम्यूनिटी को कुछ हद तक सपोर्ट किया है। डेफिनेटली जैसे मैं सोशल मीडिया पे फोटोज देखती हूँ सबको बेकिंग और ये करते हुए, तो फिर एक्चुअली जान जलती है, बिकॉज अगर आप वहाँ काढ़ा पी रहे हैं, हल्दी का इंटेक इंक्रीज किया है, बट फिर आप घर में भी ऐसे सब कंफर्ट फूड बना के ट्राई कर रहे हैं, तो आई एम वेरी सॉरी टू से ये जो इम्यून बूस्टिंग फूड्स आप खा रहे हैं उनका असर भी आप कम कर रहे हैं।
So this is not the time to indulge in comfort foods, but rather to build up your immunity. That's very important. Okay, so according to you, during these times, अगर हमारा immune system strong है या हम Right, अपने immune system को boost कर पाए, maintain कर पाए, manage कर पाए, तो right. ऐसे viruses या ऐसे pandemics या ऐसी crisis से हम अपने आप को बचा सकते हैं. We can save ourselves. Yes, yes, very much, very much. So In fact, this is मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था, उसमें हाँ, यहाँ तक कहा था उन्होंने कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो यू आर नॉट ओवरपावरिंग द वीकर, बट यू आर प्रोटेक्टिंग द वीकर. मीन्स आपकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी आपके बाजू वाले को भी बचा सकती है. So that's okay. also that was also a surprising fact for me. So So even that can was you explain a bit how this can work? Yeah, how this is so, there? how it was explained and that was say for example बड़ा crowd है और हाँ, उसमें 4 लोग ऐसे हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत पावरफुल है और एक की कम है, तो वो okay, पावरफुल लोगों की वजह से भी वो वायरस का इफेक्ट उस पे भी कम हो सकता है. सो इट इज okay, नॉट वायरस उसी को पकड़ लेगा बिकॉज बाकी लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, सो दे आर इन अ वे इनडायरेक्टली प्रोटेक्टिंग दैट पर्सन. okay. So what I come across to this is कि अगर strong immunity वाले को वायरस थोड़ा इफेक्ट करता है, तो वो राइट, वहां पे चेन ब्रेक हो सकता है, right? राइट, राइट. That is how the spread of that immunity, the spread of that virus or Yes, disease it can be reduce. stopped with a Yes, strong immunity. Very yes, good. Well, this is a very good point. I think our audiences will take care of this also कि yes, हम किस तरीके के environment में रहना चाहते हैं, बराबर. right? That also matters a lot, right? एंड ये अगर मैं रिलेट करूँ, एक सिंपल चीज होती है जब वायरल फीवर होता है मौसम चेंज होने से, तो हाँ, जरूरी नहीं है आप ये ध्यान दीजिए, मतलब ये मैंने खुद पे भी ऑब्जर्व किया है कि अगर आपने बहुत अच्छे से खाया है, से कुछ भी जंक नहीं खाया है, बहुत अच्छे से खाया है, तो शायद आपको वो सीजन नहीं होता वायरल फीवर. तो ये आई right. थिंक वेरी नेचुरल चीज है जो हम भूल गए हैं, एंड दिस इज ऑल अ काइंड ऑफ रिमाइंडर टू अस. But the same is with the cold, cough and flu things कि यस, लोगों को कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को जल्दी नहीं होता है, राइट, right? राइट. So immunity plays the role in that maintaining us or saving us from these kind of things. यस, यस. और सिंपल थिंग, अगर किसी के यहाँ एल्डरली है जो जंक खाते ही नहीं है, हाँ, हाँ, तो हम कई बार ऐसे होता है कि मेरे पास क्लाइंट्स आके बोलते हैं मैम मेरी सास इतनी ओल्ड है लेकिन कभी बीमार नहीं पड़ती और मैं सारा दिन बीमार रहती. सो अगेन इट इज हाउ आर यू मेंटेनिंग योरसेल्फ, इट ऑल कम्स डाउन टू द सेम थिंग. very good, very good. I think the people are going to get the benefit of all these discussions what we are doing. राइट, यहाँ पे मेरा ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, वो हमें सेव कर सकता है, बट व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं या बूस्ट करने के लिए वो काम करती हैं. सो व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स और फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ बूस्टिंग अवर इम्यूनिटी? सो यस, अपार्ट फ्रॉम अ प्रॉपर बैलेंस डाइट, वो तो एक है ही. उसके राइट, अलावा स्लीप. जैसे मैं अभी बहुत बार देखती हूँ कि कोई स्केड्यूल नहीं है बहुत से लोगों का. मोस्ट ऑफ द राइट, यंग जनरेशन, they are just watching series and stuff on the YouTube and सबके राइट, सब्सक्रिप्शन रखे हैं. तो रात को जो सोते हैं वो 3, 4, 5 बजे तक सोते हैं, एंड देन मीन्स तब उनको नींद आती है, एंड देन दे गेट अप अगेन इन द मॉर्निंग आल्सो बाय 1 or 2. तो बॉडी का एक क्लॉक होता है इंटरनल जिसे सर्काडियन रिदम भी बोलते हैं. ओके, मीन्स इसमें क्या होता है, ये नेचुरल हमारे बॉडी में है कि हमें ये पता है कि बॉडी को रात को सोना है और सुबह जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो हमें उठना है. मीन्स हमारा इवोल्यूशन ही उसी तरीके से हुआ है और ये अंदर से बॉडी की जो क्लॉक है उसी तरीके से काम करती है. और अब अगर ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए हैं और जो ये चीज फॉलो कर रहे हैं, मीन्स बराबर हो रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी एक लेवल ऊपर हो गई है. बट जो लोग इसको अभी भी नहीं समझे हैं,
कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, तो आप बॉडी की जो क्लॉक है उसको बहुत कंफ्यूज और डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ओके स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए, बिकॉज वो बॉडी को रेस्ट देती है जहाँ बॉडी रिपेयर कर सके, और ओके कुछ इम्यून सेल्स को भी बूस्ट करती है। बट अगर हम इस तरीके से बॉडी का फंक्शनिंग डिस्टर्ब करेंगे तो इम्यूनिटी पे बहुत बड़ा असर होगा। तो ओके स्लीपिंग एट रेगुलर टाइम्स, मे बी आपको 10 बजे नहीं सोना है तो आप एटलीस्ट 12 बजे सो जाइए, बट आई मीन डू नॉट स्लीप एट द टाइम, और डू नॉट स्टे अवेक, आई वुड से एट द टाइम जहाँ डीप स्लीप में बॉडी है, जैसे 3 4, जहाँ आपकी बॉडी एक्चुअल रेस्ट कर रही है, आप तो वहाँ फुल एक्टिव है, खा पी रहे हैं अच्छे से, राइट सीरीज वॉच कर रहे हैं, तो उस राइट तरीके से आप बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। तो ओके एक्सरसाइज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वो एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करती है, बिकॉज जब आप ओके एक्सरसाइज करते हो तो जो फील गुड हॉर्मोन्स है उनका जनरेशन होता है, तो थोड़ा माइंड में ब्लड सर्कुलेशन, ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। सो मे बी इट मे ओके बी जस्ट 10-15 मिनट्स ऑफ स्ट्रेचिंग या घर में वॉकिंग या मार्चिंग, even that will help. Then very important I would want to talk about is the gut health. ये ओके जान के आपको सरप्राइज होगा कि हमारा जो गट का वॉल है उसमें हाँ से 70% ऑफ द सेल्स इम्यूनिटी के लिए हेल्प करते हैं। तो आप ओके किस तरीके का खाना खाते हो, कितना हेल्दी आपका गट है, वो भी हाँ आपके इम्यून सिस्टम को मतलब बताएगा कि कितनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी है। ओके नेक्स्ट आई वुड कम टू इज वाटर। अभी ओके वाटर इज अगेन इम्पोर्टेंट, गर्मी है तो हम शायद अच्छे से पानी पी रहे हैं, बट अगर आप घर पे भी एसी चला के बैठ रहे हो और आपको प्यास नहीं लग रही है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू ड्रिंक एटलीस्ट 2 to 3 liters ऑफ वाटर, बिकॉज एक तो हाइड्रेशन प्लस हाँ वाटर जो न्यूट्रिएंट है उनको प्रॉपर सेल्स के लिए ट्रांसपोर्ट का काम करता है, और दूसरा वाटर टॉक्सिन्स भी बॉडी से निकालता है। तो अगर आपकी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड होगी तो एज हाँ सच टॉक्सिन लोड आपके बॉडी में काफी कम हो जाएगा। ओके तो ये तो कुछ फैक्टर्स हैं जो अलोंग विद अ प्रॉपर डाइट आपको हेल्प करेंगे इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। okay so what we have understood is कि the basic फंडामेंटल एलिमेंट्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, what you have said is apart from diet is one of the most important thing. Apart राइट, from diet is exercising, यस, sleep, water and gut health, राइट राइट, इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो और काम करते हैं हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए? और देखिए यस, स्ट्रेस लेवल्स, अगर आप सब कुछ फॉलो कर रहे हैं बट आप फुल टाइम व्हाट्सएप पे न्यूज या टीवी पे न्यूज चैनल लगा के एंशियस और बहुत ज्यादा, तो अगेन वो स्ट्रेस की वजह से कुछ ऐसे एंजाइम्स और हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो ओके वापस वही साइकिल है, फूड बराबर डाइजेस्ट नहीं करेंगे, आपका माइंड रिलैक्स नहीं रहेगा, तो राइट कुछ लेवल पे वो भी आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करेंगे। ओके मैंने कहीं पे पढ़ा था कि डेली लाफिंग फॉर सम टाइम, यस, लाफिंग एंड पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, ये ये इससे भी हमारी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। लाफ्टर थेरेपी जैसे लोग बोलते हैं, बहुत सारे हाँ लोग ऑनलाइन भी ले रहे हैं। पहले जब लॉकडाउन नहीं था बहुत सारे लोग गार्डन में जाकर भी लाफ्टर थेरेपी प्रैक्टिस करते थे, तो ओके बहुत अच्छी चीज है। यस, लाफ्टर थेरेपी डेफिनेटली, जो मैं फील गुड हॉर्मोन्स के बारे में आपको बता रही हूँ, उससे तो राइट बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम को बूस्ट मिलेगा, तो वो तो करना ही चाहिए। Okay, so now we have got so many things for the people to understand कि किस किस चीज पे वो काम करेंगे और किस किस चीज पे काम करना जरूरी है, जिससे कि हमारी जो इम्यूनिटी है उसको हम बूस्ट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. Now you being a nutritionist and dietitian from last so many years, and I am sure you have helped lot many people uh, boosting their immunity with the food. So I now just want to understand what actually is the role of nutrition for boosting the immunity. Okay, so if we come to very specific foods which actually help to boost immunity, the first and the foremost important I will come to is protein.
हमारे Okay. बॉडी का ईच एंड एवरी सेल, ईच एंड एवरी हार्मोन, ईच एंड एवरी एंजाइम प्रोटीन से ही बना होता है। तो अगर आपकी डाइट में प्रोटीन सफिशिएंट नहीं है तो इम्यूनिटी थोड़ी डगमगाएगी। तो Okay. इन शॉर्ट जितना आपका वेट है, आई मीन आइडियल वेट 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट मीट होना चाहिए। अब इतना कैलकुलेशन लेमैन के लिए पॉसिबल नहीं है, तो आपको सिर्फ Right. ये ध्यान रखना है कि दिन में अगर आप 4 मील लेते हो तो हर मील में कुछ ना कुछ प्रोटीन्स होना चाहिए। अब ये प्रोटीन्स आपको मिलेंगे कहाँ से? तो बहुत सिंपल है, आपको दाल्स है, पल्सेस है, स्प्राउट्स है, ये सब हाँ. में प्रोटीन्स है। उसके अलावा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे दूध है, दही है, पनीर है। अगर आप Right. सोया खाते हैं तो सोया इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप सोया नगेट, सोया ग्रैन्यूल्स या नॉर्मल सोया भिगो के जो जैसे पल्सेस के फॉर्म में मिलता है वैसे भी खा सकते हैं। सोया का आटा यूज कर सकते हैं आप। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग है, चिकन है, फिश है, ये भी खा के आप इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। इवन ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स है, ये सब में भी प्रोटीन है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि एवरी मील ऑफ द डे, जैसे मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो एक ग्लास दूध ले लीजिए। दोपहर के Okay. खाने में आप दाल ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं या दही ले सकते हैं। शाम के नाश्ते में कुछ ड्राई फ्रूट्स है या चना है, ये कुछ ले सकते हैं। एंड अगेन रात के खाने में दही, दाल, आई मीन अ सिंपल खिचड़ी इज ऑल्सो वेरी गुड। ओके, यहाँ Okay. मुझे एक चीज बतानी है। Right. प्रोटीन की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब जैसे मैंने कहा कि दाल इंपॉर्टेंट है, स्प्राउट्स इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक बोल ऑफ स्प्राउट्स या दाल, स्पेशली दाल, बहुत सारे लोग ऐसे दाल सिर्फ पीने के लिए पीते हैं। अच्छी Okay. नहीं लगती, लेकिन हमको प्रोटीन चाहिए इसीलिए हम पी रहे हैं। तो Hmm. क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी इन द सेंस, हर प्रोटीन में प्रोटीन बनते हैं अमाइनो एसिड से। तो कुछ Okay. अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो बॉडी नहीं बना सकती और हमें डाइट के थ्रू सप्लाई करने होते हैं, तो उन्हें हम Okay. असेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। तो अगर आपको वो फूड में सारे असेंशियल अमाइनो एसिड्स है तो आपको कंप्लीट प्रोटीन मिल रहा है। जैसे Okay. एग, एग को 100% मार्क्स दिए गए हैं बिकॉज एग में वो कंप्लीट प्रोटीन है। दूसरे सिंपल वर्ड में अगर मैं बताना चाहूँ तो हाँ. उसकी बायो अवेलेबिलिटी मीन्स, सपोज आपने दाल ले ली, एक Hmm. कटोरी दाल में मैंने कहा 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, बट वो Hmm. बायो अवेलेबल कितनी है? अगर आपको 3 या 4 ही मिल रही है तो आपकी फिर भी 2 ग्राम वेस्ट जा रही है, यानी Right. शरीर को पूरी तरीके से नहीं लग रहा। और वही अगर हम एग लेते हैं जिसमें 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, मगर Hmm. उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें सारे अमाइनो एसिड्स है, तो वो Okay. पूरे 7 ग्राम्स आपको मिलेंगे। तो अब हमें दाल को कैसे खाना है कि हमें वो पूरा 6 ग्राम प्रोटीन मिले? ये स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज के प्रोटीन जो है, इसीलिए हम बोलते हैं नॉन वेज की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, नॉन वेज प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो Okay. वेजिटेरियंस को क्या करना है, बहुत सिंपल चीज है जो हम हमेशा करते आए हैं। कोई भी Hmm. सीरियल जैसे रोटी है, राइस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स है, मिलेट्स है, जब आप उसको पल्सेस या दाल के साथ कंबाइन करते हैं, जैसे हमारी नॉर्मल खिचड़ी है, इडली है, डोसा है, Right. रोटी है या फिर खीर है, जब भी हम Hmm. सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन खाते हैं तो हमें कंप्लीट प्रोटीन मिलता है बिकॉज सीरियल्स में एक लैकिंग है और पल्सेस में एक लैकिंग है। तो जब हम Okay. दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो हमें हाँ. अगेन वो फुल कंप्लीट मिलता है और उसकी क्वालिटी एग के कंपैरेटिवली काफी अच्छी है। मतलब उतना लेवल ऑफ हमें प्रोटीन मिलता है कि अगर सीरियल्स और पल्सेस Okay. से चावल मिला के आपको 8 या 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो वो पूरा आपके बॉडी को अवेलेबल है। सो Okay. प्रोटीन इस तरीके से खाइए। सिर्फ दाल लास्ट में पी रहे हैं तो उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, स्पेशली बच्चों के इसमें आपको ध्यान देना है। द नेक्स्ट Right. इम्पॉर्टेंट विटामिन आप लोग सब बहुत सुन रहे हैं, विटामिन सी। यस, विटामिन सी बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज वो व्हाइट ब्लड सेल्स के को बूस्ट करता है। तो इसके लिए Okay. विटामिन सी आपको मिलेगा। अभी मैंगो का सीजन है, मैंगो अच्छे से खाइए, मैंगो में काफी विटामिन सी है। उसके अलावा आंवला, बट अब सीजन में नहीं है। तो अभी Okay. के सीजन में बेस्ट इज टू ईट मैंगो, इवन रॉ मैंगो या राइप मैंगो, दोनों में अच्छा विटामिन सी है।
उसके अलावा कुछ विटामिन सी कैबेज में है, थोड़ा कैप्सिकम में है, लेमन में भी है, बट विटामिन सी की एक ही प्रॉब्लम है कि वो बहुत हीट एंड एयर लेबाइल है। मतलब अगर आपने उसको खुला रख दिया 5 या 10 मिनट तो पूरा विटामिन सी उसमें से उड़ जाएगा। तो व्हेनेवर यू कट मैंगो आल्सो तुरंत खा लीजिए, उसको ज्यादा एक्सपोजर मत दीजिए एयर को। तो ओके आमरस नहीं मिलेगा आपको क्योंकि आप उसको दूध के साथ मिक्स कर रहे हो। जहाँ आपने हीट का एप्लीकेशन किया वहां आपका विटामिन सी पूरा चला जाएगा। तो ओके दैट इज वन थिंग। उसके बाद विटामिन डी, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में देख रही हूँ, बहुत सारे वेबिनार्स में ये बताया गया है, जो स्टडी कर रहे हैं कोविड पेशेंट्स को फ्रॉम फेब, ये देख रहे हैं कि उनमें विटामिन डी लेवल्स काफी लो है। तो ओके आपने भी अगर बहुत टाइम से नहीं चेक करवाया तो एक बार विटामिन डी लेवल्स चेक करवाइए। सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स, बट अगर अभी आपके घर सनलाइट नहीं आती तो फिर आपको राइट डेफिनेटली विटामिन डी के लिए लेने ही पड़ेंगे। और अदरवाइज फूड सोर्सेज में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में विटामिन डी है, या फिर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो उसमें विटामिन डी मिलेगा। एंड उसके अलावा जिंक जो न्यूट्रिएंट है, बहुत सी बार अगर जिनके यहाँ बच्चे वो देखेंगे कि अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी होती है, डॉक्टर कोई जिंक की सिरप दे देता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो ओके जिंक भी आपको इजीली डाइट से अवेलेबल है। आप कुछ डिफरेंट टाइप्स के सीड्स जो आते हैं, अलसी है, पंपकिन सीड्स है, तिल है, ये सब में अच्छा खासा जिंक मिलेगा। पल्सेस एंड स्प्राउट्स में जिंक है, ड्राई फ्रूट्स, नट्स है, इन सब में जिंक है। तो ओवरऑल अगर आप ये सब न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखते हो तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो सकती है। एंड यस, गुड फैट्स आल्सो, गुड फैट्स जो आपको बादाम वॉलनट से मिलेंगे, ओमेगा 3 जिसे हम कहते हैं, जो फ्लैक्स सीड से मिलते हैं, या कुछ राइट फैटी राइट जैसे ट्यूना, सैल्मन, ये सब में भी अच्छे फैट्स है। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन है, या इन शॉर्ट आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपको बैलेंस डाइट खाना है। और यहाँ अभी मैं एक, या हाँ बोल, नहीं आप आप पहले। अच्छा नहीं अभी आपने जैसा बोला कि हमें बैलेंस डाइट खाना है आज राइट, के एनवायरनमेंट के अंदर हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि वी शुड ईट द बेस्ट राइट हर बंदा कोशिश करता है कि वो बैलेंस डाइट खाए और बेस्ट खाए राइट लेकिन द एनवायरनमेंट सो मच ऑफ पॉल्यूशन इज देयर सो मच ऑफ पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड so much of chemicals are used for the farming these days तो राइट। आपको क्या लगता है कि जो भी हम ये न्यूट्रिएंट्स हमें नेचुरल प्रोडक्ट से चाहे वो वेजिटेबल्स हो फ्रूट्स हो पल्सेस हो या कहीं से भी वो प्रॉपर मिल पाते हैं या वो मिल रहे हैं ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मुझे पूछा। तो यस, हमें न्यूट्रिएंट्स डेफिनेटली मिल रहे हैं। आई थिंक इनफैक्ट आई थिंक वी रिसेंटली, हैव ब्रोकन कनेक्शन जस्ट या, हेलो वेलकम बैक मिसेस शिल्पा आई थिंक थोड़ा कनेक्शन ब्रेक हो गया था यस यू वर सेइंग समथिंग ओके। तो जैसे आपने मुझे पूछा कि ये बहुत सारा डाउट बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि जो हम खा रहे हैं उसमें हमें सब न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं या नहीं। तो डेफिनेटली अगर पेस्टिस, मुझे ये, एक तो मैं ये चीज क्लियर कर रही हूँ कि अगर ऑर्गेनिक है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें पेस्टिसाइड नहीं है, उसमें भी ओके पेस्टिसाइड है, बट उसमें वो पेस्टिसाइड्स है जो अलाउड है और उतने परमिसिबल लेवल्स पे ही यूज किए गए हैं। तो ये एक ओके चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, पेस्टिसाइड के वजह से न्यूट्रिटिव वैल्यू कम नहीं हो रही है। मतलब अगर आप सोचेंगे ऑर्गेनिक खा रहे हैं और उसमें आपको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो ऐसे नहीं है। मतलब न्यूट्रिटिव वैल्यू नॉर्मल जो पेस्टिसाइड लोडेड फूड है या ऑर्गेनिक है, न्यूट्रिशन उसमें उतना ही है। सिर्फ फर्क इतना है कि जो पेस्टिसाइड लोडेड है उसमें आप एडिशनल केमिकल का इंटेक कर रहे हैं, तो आपकी रिस्क ऑफ अदर थिंग्स, पॉसिबली कैंसर, हो बढ़ सकता है। अभी जो आपने कहा कि अभी का खाना कितना हेल्दी है या नहीं, तो रिसेंटली हमारा एक सेशन हुआ था जहां हमें ये बताया गया था कि ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज देयर इज एंड अदर चेंजेस जो हमारे नेचुरली हो रहे हैं, तो सॉइल में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं।
तो जो Right. हमारी न्यूट्रिटिव वैल्यू की बुक है उसमें बहुत सारी चीजों में अपडेशन आया है। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसे हम बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, उसमें बहुत फर्क नहीं है वैल्यूज में। बट जो हम Okay. माइक्रो बोलते हैं यानी विटामिन्स एंड मिनरल्स, उनमें हाँ. थोड़ा फर्क है। Okay. थोड़ा फॉर अ लेमैन यस, बट फॉर मी अगर वो 50 माइक्रोग्राम्स भी कम हुआ तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट दैट काउंट्स फॉर मी, बिकॉज वो रिक्वायरमेंट मीट करने में भी बहुत टाइम लगता है। माइक्रो क्या होते हैं, जो हमारे सारे बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन है, हमारे मिनरल्स है, अगर हम कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, तो ये Right. सब हमें खाने से मिलते हैं। और ये कितनी अच्छी सॉइल की क्वालिटी है, सॉइल कितना मिनरल रिच है, वो वही चीज हमारे प्लांट और हमारे फूड्स में ट्रांसफर करता है। बट ड्यू Okay. टू लॉट ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस ये जो सारा है ये वॉश आउट हो रहा है। तो ओवर द कमिंग ईयर थोड़ा बहुत यस चेंज आया है, बट आई वुड नॉट से कि हमें हमारे खाने में बहुत मेजर चेंज है एंड हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसे नहीं है। और कहीं हम ही इसके लिए जिम्मेदार है, बिकॉज द काइंड ऑफ things we are doing and destroying and making all these things. So I think a Right. lesson to learn for all of us कि as you sow shall you reap. तो अगर हम सोचते हैं कि खाने में कुछ नहीं है तो yes we are responsible for it, but अभी भी कुछ हुआ नहीं है, we can still work for it. Okay, so there is one more theory. There are many experts who are talking about the supplementing the nutrition, right? So there are Right. many supplements which are available in the market. कि अगर उनका उन एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि आपको अगर फूड से कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है या आप नहीं वो खा रहे हैं, तो that these supplements can actually fulfill that requirement. So what is your take on that? Do you think these supplements are good for our health, or they can actually supplement the nutrition we are taking from the food? ओके, नाउ वेदर आपको सप्लीमेंट की जरूरत है या नहीं, Hmm. ये कौन डिसाइड करेगा? आप खुद नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि Right. अगर आप एक सिंपल ब्लड टेस्ट भी अगर आप कराते हैं तो Right. उससे भी आपको पता चलेगा कि आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत है या नहीं। तो मैं ऐसे Okay. नहीं बोलूँगी कि सप्लीमेंट्स खाना ही नहीं है। अब जैसे हम एग्जांपल ले विटामिन डी का, अगर Hmm. मेरे को वो क्लाइंट आता है जो नॉनवेज भी नहीं खाता, दूध भी नहीं पीता और सनलाइट में भी जाने का उसका चांस नहीं है, कोई सीईओ है जिसको धूप में भी जाने का काम नहीं पड़ता, तो Hmm. डेफिनेटली मुझे उसको विटामिन डी सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे। बट यस, Okay. कितने देने हैं, कब तक देने हैं, उसका ब्लड टेस्ट बिना कराए मैं नहीं दे सकती, बिकॉज अगर वो उसकी टॉक्सिसिटी हो गई, कुछ सप्लीमेंट्स एक्सेस डोज में टॉक्सिक भी हो सकते हैं आपके बॉडी के लिए। तो एक प्रॉपर क्वालिफाइड पर्सन, आपके डॉक्टर या डाइटिशियन के पास जाके ही आपको देखना है वेदर आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत है या नहीं। अपने आप से कोई सप्लीमेंट नहीं लेने हैं। अगर आप नॉर्मल हेल्दी खाना खा रहे हैं तो Right. आपको बेसिकली मोस्टली सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होती। अगर आपको कोई कंप्लेंट नहीं है, आप प्रॉपर अच्छे से काम कर रहे हैं, तो यूजुअल टर्म्स में तो सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होती। उसके अलावा भी किस तरीके से सप्लीमेंट आपके बॉडी पे काम कर रहा है, वो Hmm. सप्लीमेंट लेने के बाद भी आपको ठीक लग रहा है, आपके ब्लड लेवल्स इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं, वो भी मैनेज करना, वो भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सप्लीमेंट ले Okay. लिया तो नॉट नेसेसरी कि यू विल फुलफिल द रिक्वायरमेंट। तो ये Okay. कौन से टाइम पे लेना है, फूड के साथ लेना है या नहीं, वो सारी चीजें भी बहुत मायने रखती है। ओके, सो अभी जो जो एक ट्रेंड चल रहा है कि हर बंदा सप्लीमेंट्स खाना चाहता है, या बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये सजेशन भी देते हैं कि आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, तो बट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आई गॉट इट इज कि एक्सेस ऑफ दीज सप्लीमेंट्स also can impact our immunity. Yes, they can impact your immunity, they can impact your gut functioning also. वो भी बहुत Okay. इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे Okay. अगर कोई प्रोबायोटिक, अब जैसे याकुट है, Hmm. बहुत सी बार ऐसे ही आप बच्चों को दे देते हैं। तो Hmm. कोई भी चीज जरूरी नहीं है कि आपको सूट करे, हो सकता है किसी को उससे ब्लोटिंग हो। तो वो Hmm. सारी चीजें बहुत डिटेल में जानना बहुत जरूरी है, कि जरूरी नहीं है कि
अगर मैंने किसी को वो एक ब्रांड ऑफ सप्लीमेंट दिया और उसके घर में दूसरे को भी वो ही ब्रांड सूट होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वो कौन सी चीज आपको सूट होगी, क्या लेवल पे होगी, क्या डोसेज में होगी, वो जानना बहुत जरूरी है। ओवर द काउंटर्स डेफिनेटली अपने आप से नहीं लेना है। ओके, तो अभी ये पब्लिक के लिए ये समझ पाना कि मेरी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स कौन से चाहिए या कौन से मुझे खाने से मिल रहे हैं, कौन से नहीं मिल रहे हैं, हाउ इट इज अ पर्सन, अ कॉमन मैन और पब्लिक कैन डिसाइड, उनको ये कैसे पता चल सकता है कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, या कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, किस टाइम से? So what you suggest, yeah, what you recommend, what is the criteria, how we ओके can know our body? ओके, सो वन इज डेफिनेटली अगर आपको कुछ भी लेवल्स ऊपर नीचे लग रहे हैं, बेसिक चीज अगर आपको सब कुछ खा के भी थकान लग रही है, यू आर नॉट फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, सुबह उठने के बाद आपका मन नहीं करता कि बेड से उठ के मैं कुछ काम करूं, दैट मीन्स कुछ तो प्रॉब्लम कहीं पे है। सो आइदर Okay. विजिट योर डॉक्टर और क्वालिफाइड डाइटिशियन। सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो ब्लड टेस्ट करवाएंगे पहले। ब्लड टेस्ट इज द Okay. बेसिक थिंग। भले ही वो नॉर्मल ब्लड टेस्ट हो जिसमें कुछ वाइटामिन, कुछ मिनरल्स जैसे आपका हेमोग्लोबिन, कैल्शियम, ये भी एसेस होता है, तो ये एक तरीका है जो साल में एक बार अगर आप अपना मेडिकल चेकअप कराते हैं तो आपको पता Okay. चलता है कि आपकी बॉडी ठीक से चल रही है या आपके बॉडी में कुछ डेफिशिएंट है। तो अगर डेफिशिएंट है और आप प्रॉपर नॉर्मल खाना खा रहे हैं उसके बाद भी डेफिशिएंट है, तब शायद डॉक्टर या डाइटिशियन डिसाइड करेंगे कि आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत है। उसके Okay. अलावा जेनेटिक टेस्टिंग भी आजकल आ गई है, जो Okay. बताते हैं कि आपकी जेनेटिक टेस्टिंग में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। कई बार ऐसे होता है आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो और आपकी बॉडी को फिर भी वो चीज बराबर से आपके लेवल्स इंप्रूव नहीं हो रहे, तो हो सकता है Okay. कोई जेनेटिक मेकअप में प्रॉब्लम हो। तो Okay. जेनेटिक टेस्ट बहुत सारी चीजें आपको बता सकता है, आपके गट के फंक्शनिंग में, आपका सेंसिटिविटी ऑफ योर टेस्ट, एब्जॉर्प्शन। तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट है जो हम करके ये पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में किस चीज की जरूरत है और क्या लेवल पे है और क्या लेवल पे फंक्शनिंग इफेक्ट हुआ है। तो और कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, हो सकता है आपको कुछ रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड से अफेक्ट हो रहा हो, तो उस हिसाब से ये सारी चीजें हम डिसाइड कर सकते हैं। Okay. So what I am getting it from here is कि हमें अपनी बॉडी को रेगुलर चेक करते रहना चाहिए, राइट? राइट, एब्सोल्युटली राइट। एटलीस्ट साल में एक बार अगर आप कुछ नहीं तो बेसिक जो ब्लड प्रोफाइल होता है, आई थिंक 4 या राइट. 5,000 में हो जाता है। एंड आई थिंक ड्यूरिंग द वर्ल्ड हेल्थ डे और ऐसे सब डेज पे अच्छा खासा डिस्काउंट भी चलता है। तो सबको एटलीस्ट एक बार एज अ मेंटेनेंस काइंड ऑफ अ थिंग फॉर योर बॉडी। ओके, तो बॉडी का मेंटेनेंस होना, ईयरली मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है। हम अपने मोबाइल्स का मेंटेनेंस करते हैं, हम अपने कंप्यूटर्स का, हम अपने घर का, हम हर चीज का मेंटेनेंस करते हैं, लेकिन बॉडी का मेंटेनेंस नहीं करते हैं, राइट? राइट, सो आई थिंक आई गॉट अ वेरी गुड पॉइंट हियर, एंड आई थिंक एवरीबडी विल अंडरस्टैंड इट कि कम से कम साल में एक बार अपनी बॉडी को चेक करना, उसका मेंटेनेंस करना, उसको देखते रहना कि मेरी बॉडी को अभी किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा हमारी हेल्थ में और हमारी इम्यूनिटी में और हमारे फ्यूचर फिटनेस में, राइट? मैं और एक चीज इसमें बोलूंगी, अगर आपका रिपोर्ट पूरा सही आता है, नॉर्मल आता है, तो बी वेरी हैप्पी कि गुड कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं, यू कैन कंटिन्यू। बहुत सारे लोगों को ओके. ऐसा लगता है अरे इतना खर्चा कर लिया और रिपोर्ट में कुछ आया नहीं, तो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी हैप्पी। तो कुछ नहीं आए उसी का प्रे करना है, एंड यू हैव टू एटलीस्ट साल में एक बार टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। ये कई भी बार आपने, ऐसे भी होता है हाँ, कोई बीमारी आपको माइनर लेवल पे भी पता चल सकती है, तो इसीलिए राइट. एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट आई थिंक एवरीबडी को कराना चाहिए। ओके, आपकी बात से एक चीज मुझे समझ आ रही है कि पीपल फील कि अगर हमने टेस्ट कराया है और अगर कुछ पता चल गया तो पैसे वसूल हो गया, नहीं तो पैसे वसूल नहीं हुआ।
क्योंकि right? बहुत सारे लोग Any- मुझे आके बोलते हैं मैम सब कुछ नॉर्मल आया है, सो आई एम लाइक यस, सो बी हैप्पी अबाउट इट, एटलीस्ट आपको पता है कि आपकी बॉडी बहुत अच्छे से काम कर रही है, सो एटलीस्ट थैंक योर बॉडी की मेरे को इतना अच्छे से सपोर्ट करने के लिए, सो right. दैट So इज आई you are absolutely right. Ki today we are not focusing or we are not spending on the preventive measures. थिंक We are राइट, only spending on the curative measures. जब डॉक्टर वेरी ने ट्रू, हमें बोल दिया तब हम लाखों रुपया लगा देंगे, लेकिन सही, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हमें कोई जरूरत तो नहीं है, we cannot spend few thousands also. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, राइट. सो आई एम वेरी हैप्पी कि आई थिंक हमारे जो ऑडियंसेस हैं या जो हमारे लोग हैं उनको इस डिस्कशन से बहुत सारी चीजें मिलेंगी विच दे कैन फॉलो एंड विच दे कैन अडॉप्ट इन देयर लाइफ, विच विल हेल्प देम डेफिनेटली टू बूस्ट देयर इम्यूनिटी एंड देयर फिटनेस लेवल्स. राइट. मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे अभी हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर एडल्ट्स, राइट, सो वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, राइट, एंड देन वी कैन वर्क ऑन इट. बट राइट, हमारे बच्चों को ये नहीं पता है. हमारे बच्चों मतलब एट अ चाइल्डहुड लेवल, राइट, वी डोंट बराबर, understand these things. So I want, what is which you want to suggest it to the parents, uh, for what they can do or how they can actually help their kids, one, to boost their immunity, और वो राइट, इम्यूनिटी के ऊपर, अपने बच्चों की इम्यूनिटी के ऊपर काम कर सके. दूसरा, वो अपने बच्चों को कैसे सिखा सके, कैसे समझा सके कि उनको भी लाइफ लॉन्ग उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है. Because it at this age also we have never been taught, right, ki how we should improve or why we should focus on our immunity. If our kids are not taught for that, then they are gonna face the same problems what we are facing today in their राइट, adulthood, right? So what is राइट. your suggestion and one thing which you will tell to the parents? Okay, so for parents, I have a few pointers. One is avoid giving them antibiotics until and unless your doctor suggests. क्योंकि Okay. कई बार ऐसा होता है डॉक्टर ने लिखा है और हमने दे दी, लेकिन वो गुड बैक्टीरिया भी वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया के साथ वॉश आउट कर सकते हैं. Okay. दूसरा, आई वांट ऑल पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड दैट लिमिट द इनटेक ऑफ प्रोसेस्ड जंक फूड एंड द शुगरी ट्रीट्स. ऑन एंड ऑफ Okay. आप घर पे बनाते हो या बाहर से देते हो. अभी आप बोलेंगे कि क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ, और इसका बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है. जो मैंने गट के बारे में बात की थी, जहाँ पे ऑलमोस्ट 70% इम्यून सेल्स बनते हैं. अगर आप बहुत ज्यादा शुगरी फूड देते हो तो ये जो बैड बैक्टीरियाज है, इनका शुगर ही खाना है, तो वो बहुत शुगर लविंग होते हैं. तो अगर Okay. रेगुलरली आपका बच्चा मीठा खाता है, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं हमारे यहाँ आदत है खाने के बाद कुछ मीठा खाने की, तो ब्रेक दैट, आई मीन डोंट मेक योर किड फॉल इनटू द सेम ट्रैप. क्योंकि अगर आप उसको ऐसे करते हो, और जैसे मैंने कहा वो पैथोजेंस को सिर्फ शुगर बहुत अच्छा लगता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका क्राउड इतना इंक्रीज हो जाता है शुगर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज का, कि जो दूसरे अच्छे बैक्टीरियाज हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं. तो ऑन Right. रेगुलर बेसिस को बच्चों को शिकायत हो सकती है पेट की. तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि शुगरी एंड जंक एंड टू मच ऑफ सॉल्टी फूड्स आपको बहुत कम रखना है उनके डाइट में. उसके Okay. अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको उन्हें बस छोड़ देना है. बहुत सारे पेरेंट्स धूप में नहीं खेलने देते, मट्टी से नहीं खेलने देते. So, Hmm. I mean, all these things are very important to increase the child's immunity, because unless and until they are not faced to it, वो कभी भी उनकी immunity बढ़ने वाली नहीं है. Okay. सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए. अगर Okay. आपका बच्चा नहीं खाता है तो हेल्प लीजिए. बहुत सारे तरीके हैं, अच्छे मेथड्स है जिससे आप बच्चों को खिला सको, उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सको. नॉट जस्ट गिविंग देम मल्टीविटामिन सिरप इज गोइंग टू हेल्प देम, बट जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो खाना बहुत बहुत जरूरी है. ब्रेस्ट फीडिंग डेफिनेटली सबको पता है, ब्रेस्ट फेड बेबीज आर इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग कम से कम 2 साल तक करना बहुत जरूरी है. एंड यस, और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं बोलूंगी वो ये है कि
बहुत सारे माओं को मैंने देखा है जो बच्चों को बहुत सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस जो हमारे इंडियन कल्चर्स में यूज होते हैं, और वो एक उन्हीं में एक स्टोर हाउस ऑफ इम्यूनिटी है। तो हर्ब्स एंड डेफिनेटली स्पाइसेस में चिली छोड़ के जो बाकी हमारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस है, राइट फ्रॉम जीरा, अजवाइन, थोड़े थोड़े अमाउंट में जैसे ही आप वीनिंग स्टार्ट करते हो अपने बच्चों को देने स्टार्ट कर दीजिए, ताकि बच्चे उसके लिए टेस्ट डेवलप करें। बिकॉज ये भी बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए एंड बहुत अच्छे से इम्यूनिटी बिल्टअप करने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तो नॉर्मल ब्लैंड डाइट उन्हें मत दीजिए। ये सारे हर्ब्स में कोई नुकसान नहीं है। सॉल्ट, शुगर एंड यस मिर्ची पाउडर आप कम रख सकते हैं, जो बट जो बाकी की चीजें हैं जैसे इलायची है, नटमग पाउडर है, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर है, ये सब बहुत छोटे छोटे अमाउंट में ही बच्चों को लगता है। तो आप उन्हें ये सब चीजें खाने की किसी में स्प्रिंकल करके दे दीजिए। मैं कई बार एडवाइस करती हूँ कि आप इस तरीके का हर्ब बॉक्स है जिसमें नॉर्मल है, थोड़ी सौंफ है, थोड़ा अजवाइन है, डिफरेंट सीड्स है, वो डाइनिंग टेबल पे ही रखिए, ताकि आते जाते बच्चा थोड़ा खा सके, इंस्टेड ऑफ कीपिंग योर सॉल्ट एंड शुगर शेकर ऑन द टेबल। तो अगर राइट। आप कुछ पाउडर्स भी रखते हैं जैसे जीरा पाउडर है, सिनेमन पाउडर है, तो वो आप किसी में सैलेड्स पे स्प्रिंकल करके भी खा सकते हैं। तो ये आप स्टार्टिंग से ही बच्चों को इसको इंट्रोड्यूस कीजिए। एंड वन मोर थिंग इज प्रोबायोटिक। गट हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक वो चीज है जो आपको अच्छे बैक्टीरियाज देते हैं, ताकि बॉडी के बैक्टीरियाज उसकी हेल्प लेके ग्रो हो। तो सिंपल कर्ड भी अगर आप डेली अपने बच्चे के डाइट में इंक्लूड करेंगे तो उससे भी उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। उसके अलावा जो फर्मेंटेड फूड्स है, जैसे इडली है, राइट। डोसा है, ढोकला है, ये सब में भी जो लेवल ऑफ प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज है वो काफी अच्छे होते हैं। तो ये सब अपने ओके। बच्चे के डाइट में थोड़ा ज्यादा रखिए। ओके। ओके, So so this what I am, या सो व्हाट आई एम गेटिंग इज, बच्चों की डाइट को मैनेज करना, बच्चों के डाइट को बूस्ट करना, या उनको वो सारी चीजें देना जो होनी चाहिए, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट, राइट। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है, मतलब आई हैव सीन पीपल आर, या पेरेंट्स आर फोकसिंग ऑन द किड्स डाइट, बट दे आर नॉट, एक सेकेंड, yes, we are back, Mrs. Shilpa. Sorry, it got disconnected because of the network issues. And okay, you were talking about the suggestion to the parents, right? And I was saying, अभी बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के लिए अपनी उनकी डाइट पे बहुत सारा ध्यान रखते हैं, दे टेक केयर, और उनको जो भी कोई बोलता है दे जस्ट ट्राई टू गिव दैट थिंग टू द किड्स, राइट, कि Right. उनका हेल्थ अच्छा रहे, उनका फिटनेस अच्छा रहे। बट बराबर। माय पॉइंट टू यू इज, या व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू इज, ये बच्चों को हम कैसे सिखाएं या समझाएं कि उनको जो है ना ये सारी चीजें, ये न्यूट्रिएंट्स पे काम करना है, क्योंकि पेरेंट्स उनको खिलाते तो हैं लेकिन शायद बताते नहीं है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट, राइट, ताकि वो अपने आने वाले टाइम में उन सारी चीजों को याद रखें, या उनके ऊपर जो है ना वो हमेशा काम करते रहें। सो हाउ और व्हाट डू यू सजेस्ट इन दैट? ओके, तो अभी इसके लिए मैं बोलूँगी ये जो समय चल रहा है, मीन्स अभी हम जो इससे जा रहे हैं ये पैंडेमिक से, ये बहुत राइट। सही टाइम है अपने बच्चों को सिखाने के लिए कि क्यों हेल्दी ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हमें राइट। एग्जाम्पल भी देना है तो ये वो हम खुद आजमा के उनको बता सकते हैं कि क्यों हम हेल्दी है और क्यों हम हेल्दी खा रहे हैं। प्रोवाइडेड ये तभी हो सकता है जब पेरेंट्स भी प्रॉपर हेल्दी खा रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स वो उनके लिए रोल मॉडल है। अगर पेरेंट्स भी राइट। नहीं खा रहे हैं, वो घर में कुछ कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, बस पूरे दिन टीवी या व्हाट्सएप पे है, तो डेफिनेटली बच्चों के लिए वो भी एक लेसन है कि मीन्स ये तो रोल मॉडलिंग ही का ही ये हो गया कि जैसे पेरेंट्स करेंगे बच्चे ऑटोमेटिकली वैसे ही सीखेंगे। तो सिखाने राइट। से ही ज्यादा दे ऑब्जर्व एंड लर्न एज व्हाट आई हैव सीन। तो इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट स्टोरीज ऑल्सो, तो पेरेंट्स अगर हेल्दी खा रहे हैं, वो जब कुछ हेल्दी बनाए तो उनको रिलेट कर सकते हैं कि यस दिस इज गुड वेरी फॉर गुड। योर।
से आईज के लिए अच्छा है, आपके स्किन के लिए अच्छा है। एक नॉर्मल इससे भी समझा सकते हैं कि से फॉर एग्जांपल कैरेट्स अगर सैलेड में दे रहे हैं या कैरेट्स का पराठा भी बनाया है, तो दे कैन रिलेटेड टू इम्यूनिटी एंड एक्सप्लेन कि कैरेट से आपको विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए उनके स्किन के लिए अच्छा है, एंड स्किन भी एक बैरियर है पैथोजेंस या वायरसेस को एंटर करने के लिए। तो अगर स्किन की हेल्थ अच्छी होगी तो आपको स्किन इन्फेक्शन और वो सब भी नहीं होगा। तो एक ये छोटी छोटी चीजें हैं, और आजकल इनफैक्ट बहुत सिंपल गूगल करने से भी पेरेंट्स ये इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से चीजें क्या है, बिकॉज नॉट नेसेसरी कि पेरेंट्स के पास भी ये नॉलेज हो। एंड इफ दे नीड माय हेल्प, ऑफ कोर्स आई कैन एनी टाइम हेल्प देम आउट। सो बहुत सिंपल चीजें हैं और बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं ये सब चीजें। तो ये वेरी मैं ट्रू। बोलती हूँ, जो मौका चल रहा है उसे जाने नहीं देना चाहिए, और इसी में उनको अपने बच्चों को सिखा देना चाहिए, बिकॉज इसके बाद ऐसा टाइम आएगा नहीं कि आप बच्चों को बोलेंगे और वो सुनेंगे। वेरी ट्रू। आपने जैसे बिल्कुल सही बोला कि वन, दिस इज द टाइम वेयर इन वी कैन टीच अवर किड्स about the healthy diet and healthy food and what is the impact of that healthy diet and food on our body, right? Right. तो ये बहुत अच्छा टाइम है, ये इस टाइम पे हम सिखा सकते हैं। एंड देन वन वेरी गुड पॉइंट यू हैव कि आज पेरेंट्स को बहुत सारी चीजें नहीं पता है, राइट? तो उसके लिए वो ऑनलाइन जा सकते हैं या आप जैसे एक्सपर्ट्स के पास आ सकते हैं। दे कैन ट्राई टू फाइंड आउट, सी दिस इज व्हाट वी हैव बीन मिसिंग इन अवर जर्नी, राइट? तो Right. Right. आज हमें लगता है कि वो चीजें अगर हमें बचपन में ज्यादा पता होती तो वी वुड हैव टेकन केयर ऑफ दोज थिंग्स, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि खाली डाइट के साथ साथ अगर हम अपने बच्चों को उसके बारे में नॉलेज भी दें, उसके बारे में अवेयरनेस भी दें, तो वो ज्यादा बेटर होगा, सो दैट दे कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ इट इन देयर होल लाइफ, right? Right. So I'm very excited and glad you are here on the platform, and whatever you have shared, I'm sure the people are gonna benefit out of it. जो भी आपका knowledge, experience और insights आपने share किया to boost the immunity and the role of nutrition for that immunity, उससे सबको benefit मिलेगा. So one last thing, what you want to say to the audiences कि वो अपना ध्यान और अपनी फिटनेस का ध्यान कैसे रखें? ओके, बहुत सिंपल है, आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जो भी सीजन में चीजें अवेलेबल है उसको अच्छे से खाइए। आउट ऑफ द सीजन प्लीज कुछ भी मत खाइए, एंड डू नॉट स्टार्व, डू नॉट फॉलो एनी फैट डाइट। जो आप रेगुलर खा रहे हो प्रॉपर एक बैलेंस डाइट खाइए, माइंडफुली खाइए। बहुत सी बार लोग करते कुछ है खाते कभी और है, और अभी का टाइम है जहाँ आप ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ईट अ प्रॉपर बैलेंस डाइट, ईट माइंडफुली, एंड यस स्टे हेल्दी, डू लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज, ताकि जो आपने खाया है अच्छे से यूटिलाइज हो। सो दैट इज Okay, व्हाट आई वांट टू टेल all my audience. And great. thank you so And much for inviting me. I totally enjoyed the session and quite a good questions जिसपे मैक्सिमम लोग बेनिफिट होंगे। काफी कॉमन क्वेश्चंस है जिसपे हम ध्यान नहीं देते जो आपने मुझे पूछे, एंड आई विल बी हैप्पी अगर मैक्सिमम लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू सो मच। thank you very much. Thank you, शिल्पा जी। Our idea of this aware रहो या ये discussions का यही है कि basics. See, people are talking about advanced things, right? So Right. we are trying to focus on the basics, because if the basics are strong, if you are working on the basics from the beginning, right, then you can adopt the advance. But if your Very, basics are weak, if you are not working on the basics, then I think advance will never help. How much or very true. whatever you can do, right? So this is the complete idea of our talks. This is the complete idea of our Awero initiative. And I just want to ask you one more thing. If the audiences want to connect with you, right? And we are starting with our one service more, that is ask us anything relevant to the topic, right? Right. So for that matter, if anybody has a question related to health or wellness or diet or nutrition,
they can Right. come to our website and they will ask that question. So we will share that with you. So if it will be great help to those people if you can answer them, or if you can tell them what to do, or what is required. And also, Absolutely. That's a very good thing what you're going to start. That will yeah. benefit lakhs of people. So that's a very good thing. My help is surely going to be there. So we are starting with this segment of ask us anything about the relevant topic, and the experts will Great. answer. Right. Great. Apart from Great. that, if anybody wants to directly connect to you, so you can just tell us your website or Facebook, how they can connect it to you. Okay, so my website address is shilpsnutrilife.com. Otherwise, you can directly either email me at shilpsnutrilife@gmail.com, or you can directly contact me on my phone number, which is 9870404042. So in the end, I want to thank you and the audiences, and I am sure everybody is gonna get the benefit out of it. If you people like this, share it with other people so that they can also get the benefit out of it. And all the experts who are gonna be there on this platform, they will be listed in our website. You can directly connect to them. You can ask us anything. We will try to answer from our side, or we will try our best to get the answers from the experts for you, and we'll share it with you. Thank you very much for having here, for listening to this talk, and I'm sure it is gonna help you all. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you. Shilpaji. Thank you Bye. so much. Yeah, bye. Bye.